Hello student, in this video I am going to explain you what is projectile motion and what are the component of projectile motion. In this video I am going to explain what is projectile motion and what are the quantities related with projectile motion. So first I write heading projectile motion. Now understand what is the real mean of projectile motion. Assume if we throw an object like this, ठीक है, ना तो straight ना circular. If we throw like the object, जैसे आपने देखा जेवलिन थ्रो होता है, ठीक है, उसके अंदर अपन फेंकते हैं भाला फेंक, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. तो if we throw an object or after throwing it will remain in a height. If we throw an object or it make angle theta with the x-axis, or if we throw an object or remain in flight, this kind of motion is called projectile motion. ठीक है. Now you can see here, if we throw an object with velocity u and angle theta, then this is called is horizontal component u cos theta, or it make a vertical component which is u sin theta. Now our aim is to derive different formulas for the projectile motion. ठीक है. Now one by one I will explain each of the formula. First, for the time to reach maximum height, for example when we throw an object or reaches the maximum height, so how much time it will take to reach from 0 to maximum height. So we derive this formula by using first equation of motion of vertical component. ठीक है. Vertical component of first equation of motion, you know that v equal to u plus at, and the vertical component for this we write vy equal to uy plus ayt. ठीक है. Now here we put some values at the maximum height. At the maximum height the final velocity, a vertical component velocity is become 0. uy, देखो uy is the vertical component is u sin theta. Now ay equal to, here we know that it is moving upward, so the gravitational acceleration is minus g, and time is replaced by tm. tm अपन कह रहे हैं यहाँ पे time to reach maximum height. Now we put all the values in this equation. We get vy की जगह 0 रिप्लेस किया, uy is u sin theta, ay is replaced by minus, g is tm. Now simplify, tm equal to, इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा u sin theta upon g. This is the equation to time to reach maximum height. First we derive here time to reach maximum height which is u sin theta upon g. Now देखो जितना टाइम अप जाने में लगता है उतना ही टाइम डाउन जाने में लगता है. तो अब यहाँ पे हम एक और क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, वो होती है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स क्या होता है, द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी. जैसे यहाँ से शुरू हुआ प्रोजेक्टाइल, यहाँ गया, फिर वापस ये नीचे आ गया, तो जितना टाइम उसको अप जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे जाने में लगता है. तो हमने यहाँ पे पहले निकाला टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ट्वाइस ऑफ टी एम, कि इसका डबल कर देंगे यदि हम, तो वी विल गेट टोटल टाइम. टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या है, द टोटल टाइम ऑफ ए जर्नी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. द टोटल टाइम जर्नी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जितना टोटल टाइम लगता है इस किसी प्रोजेक्टाइल की जर्नी में, वो उसका कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है. तो वो आपका क्या हो जाएगा 2 tm. टाइम ऑफ फ्लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं tf से, तो tf इक्वल टू 2 tm. आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g. एक बार वापस लिख देता हूँ मैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट tf इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ नेक्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज. देखो यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, प्रोजेक्टाइल पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, केवल ये जो हॉरिजॉन्टल नीचे नीचे की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज. इस रेंज को कैपिटल R से डिनोट करते हैं. हम इसको डिटरमाइन करेंगे. इसके लिए वी विल यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्स कंपोनेंट वाला फॉर्मूला. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर.
इसी का x कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है, पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का x कंपोनेंट वाला फॉर्मूला होता है x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। नाउ ईयर पुटिंग करेंगे अब देखो x क्योंकि ये पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज x को अपन r से डिनोट कर लिया, x रिप्लेस बाय r। यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा। t यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगता है, अभी हमने सीखा क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t इज रिप्लेस बाय tf विच फॉर्मूला इज 2u साइन थीटा अपॉन g। एंड फिर ax क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन कुछ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन हियर इज 0। ये सब वैल्यूज हम इस अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आता है, ये सब पुट करेंगे। तो देखो x की जगह आप करोगे r, ux की जगह आप रखोगे u cos थीटा, और t की जगह आप टाइम ऑफ फ्लाइट ये पुट करोगे 2u साइन थीटा अपॉन g प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब आप देखो ए एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा प्लस करके 0 हो जाएगा, तो उसको आप अवॉइड कर दो, ठीक है। तो ये r इक्वल टू क्या हो गया, अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, u इंटू यू क्या हो गया यू स्क्वायर, और आप इसको साथ लिख दो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। 2 साइन थीटा कोस थीटा जो होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा इट इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जैसे हम इसको पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर, ये रिप्लेस हो जाएगा साइन 2 थीटा से, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, अपॉन जी। तो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप समझ लीजिए अच्छे से हाउ वी डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ कि यदि मान लो मुझे मैक्सिमम आर निकालना है कि एट विच एंगल, ये भी क्वेश्चन कितनी बार आता है कि एट विच एंगल द रेंज इज़ मैक्सिमम, तो आप खुद सोचो थीटा की क्या वैल्यू रखे कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। आप जानते हो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, वो कितने पे होती है 90 डिग्री पे। तो यदि हम थीटा को 45 डिग्री रखें तो देखो 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, तो इस पे क्या हो जाएगा रेंज बिकम मैक्सिमम। यदि किसी चीज़ को आप 45 डिग्री पे थ्रो करते हो तो जो आपका रेंज होगा वो क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जैसे रिप्लेस करोगे देखो आर मैक्सिमम बोलेंगे इक्वल टू यू स्क्वायर, जैसे आप पुट करोगे साइन, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, साइन 2 थीटा की जगह आप रखोगे 45 डिग्री अपॉन जी। तो देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी। तो दिस इज ए अनदर फॉर्मूला फॉर आर मैक्सिमम, ठीक है। तो व्हेन वी पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखो ये आपकी कहलाती है जितने हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक आपका प्रोजेक्टाइल पहुंच सकता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एच। इसको हम क्या करते हैं कैपिटल एच से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कहलाती है आपकी मैक्सिमम हाइट। अब हम इसको निकालेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर टू डिराइव मैक्सिमम हाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल वी यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल कंपोनेंट, वी यूज़ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो आप जानते हो सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वही देखो आपको बेसिक इक्वेशंस लर्न होनी चाहिए और फिर पुटिंग करना आना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y इज रिप्लेस बाय कैपिटल H, क्योंकि वर्टिकल, जैसे पहले हॉरिजॉन्टली अब ले रहे हैं हम वर्टिकल। यू वाई आपका u साइन थीटा t। अब देखो t यहाँ पे क्या है, टाइम टू इज मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो आपका tm हो जाएगा, और उसकी वैल्यू पता है आपको u साइन थीटा अपॉन g,
और ए वाई होगा आपका माइनस जी। इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, पुट करते हैं हम। देखिए आप h इक्वल टू यू आई की जगह आप पुट करोगे u साइन थीटा, t इज रिप्लेस बाय u साइन थीटा अपॉन g। अब देखो प्लस यहाँ पे देखो थोड़ा समझना, ए वाई है यहाँ पर, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हाफ जी। देखो ए वाई रिप्लेस बाय माइनस जी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है यू साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई इट, एच इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, ये एज इट इज़। अब इसको भी होल स्क्वायर करो आप, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, जी से एक जी कैंसिल, क्या बचा आपके देखो नेक्स्ट लाइन में h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, इसको भी सिंप्लीफाई लिखते हैं माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये कट गया, एक ही जी बचा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों में आपके कॉमन क्या आ रहा है, आप देखोगे तो देखो पूरा ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट, तो आप इसको कॉमन ले लो पूरे में से, तो देखो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ब्रैकेट में बचेगा, इसमें से कॉमन लोगे इसको 1 माइनस ये पूरा कॉमन गया तो हाफ। और फिर देखो नेक्स्ट लाइन में देखो h इक्वल टू, अब देखो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 माइनस हाफ क्या होता है हाफ, तो आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। 1 में से आप गया हाफ और बाकी एज इट इज़, तो ये दिस इज़ द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। कितना, यदि आपको यू थीटा की वैल्यू पता हो तो बाय पुटिंग यू कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द फार्मूला रिलेटेड विथ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रैक्टिस इट। थैंक यू। इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.